O Lord, you search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For a meditation this morning, I have chosen from the book of Proverbs, chapter 4, verse 19. The way of the wicked is like deep darkness. They do not know over what they stumble. Good morning, friends. Wickedness will only lead to fall, for we walk in the darkness. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is wickedness is deep darkness. Here in this proverb, the wise man is very expressively talking about the wicked and the righteous. He talks about how the wicked survive, how the wicked are flourishing. But then what he points out is that wickedness is like walking in darkness. They will not understand over what they stumble. What he means to say here is, wickedness can bring you achievements, can lead you to success, can take you through, but you will certainly not understand at what point in time you will stumble and fall. For you do not have any knowledge of where you are walking and at what point in time you will have a great fall. Friends, as we are the people of God, we need to do good, walk in righteousness. If we choose wickedness, wickedness may bring success, popularity, status, richness, or anything this world could really appreciate. But the way you get to such situations or positions is very important. You need to walk the right path. But wickedness will may take you to the highest, but it will also lead you into fall where you can never ever come back. So let us always remember, it is good to do good and be right and be righteous, rather than being wicked and seeing success and having a fall and not understanding where, when, and how. Friends, let us look to God. Let us be strengthened by the Lord, so that in all that we do, which is right, the Lord will or may take us at the right time into the right status position. The Lord will certainly take us to the right position at the right time. Let us believe, trust in Him, and do what is right. Gracious God, our Heavenly Father, help us not to be wicked, but to do good and to do what is right according to your will in the right path. Be with us, O Lord, in Christ's name we pray. Amen. मेरे चलने और लौटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है नीति वचन अध्याय 4 और उसका 19वां वाक्य। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। आपका दिन आशीषित हो। दुष्टता के कार्य से व्यक्ति गिरता है और चारों ओर उसके अंधकार ही होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दुष्टता घोर अंधकार के समान होता है। नीति वचन के इस वचन में बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है दुष्ट के बारे में और धर्मी के बारे में। वे बात करता है किस प्रकार से दुष्ट बचे रहते हैं और किस प्रकार से वे फलते फूलते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का संकेत करता है कि दुष्टता अंधेरे में चलने जैसा होता है। उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि वे कब ठोकर खाते हैं। कहने का आशय ये है कि दुष्टता के कार्य करने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आप सफलता को पा सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ पाएंगे कि किस समय आप
ठोकर खाकर गिर सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ चल रहे हैं उसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है और किस समय आप गिर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम भलाई के कार्य करते रहें और धार्मिकता में होकर चले। यदि हम दुष्टता को चुनते हैं तो उससे हमें सफलता मिल सकती है, हम विख्यात हो सकते हैं, हमारा ओहदा बड़ा हो सकता है और हम अत्यंत अमीर भी हो सकते हैं और दुनिया हमारी वाहवाही करेगी। लेकिन जिस मार्ग को आप चुनते हैं, ऐसी जगह तक पहुंचने के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सही मार्ग पर चलना होगा, लेकिन यदि आप दुष्टता के कार्य करते हैं, वो आपको सफलता की चरम सीमा पर लेके जा सकता है, लेकिन वे आपको गिराता भी है, जहाँ से आप लौट नहीं सकते। और आप हमेशा इस बात को याद रखें, भलाई करने से भलाई उत्पन्न होती है। आप सही करें और धर्मी बने रहें, न कि आप दुष्टता के कार्य करें, सफल हो जाएं और फिर गिर जाएं और आप ये भी नहीं समझ पाए कि ये कैसा हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। मित्रों, हम परमेश्वर को निहारें और वही हमें बल दे, ताकि हम जो कुछ करते हैं और वह सही होता है तो परमेश्वर हमें अवश्य हमें सही समय पर एक सही जगह पर सही ओहदे पर पहुंचाता है। परमेश्वर अवश्य हमें सही समय पर सही जगह पर पहुंचाएगा। हम उस पर यकीन करें, विश्वास करें और भलाई ही करते रहें और जो सही है उसे ही करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर ताकि हम दुष्ट के समान ना बने, हम भलाई करते रहें और जो सही है उसी को हम करें, जो तेरी इच्छा के अनुसार है और तेरे मार्ग पर चलें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।